पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन इंदौर पहुंचे, जहां उनके साथ राज्यपाल मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहे। जहां उपराष्ट्रपति ने पहली बार राज्यपाल बनने और 1973 में हुई पहली मुलाकात के संस्मरण सुनाए। वहीं मुख्यमंत्री यादव ने भी अटल के आदर्शों पर प्रदेश सरकार द्वारा किए विकास कार्यों की जानकारी दी। इस दौरान साहित्यकारों का सम्मान भी किया गया। Every citizen of Hindu, for continuously you are getting the most clean city of Bharat for many years. सबसे स्वच्छ शहर इंदौर के सारे नागरिकों को मेरी ओर से बहुत बधाई। When I think of Sri Atalji, I am reminded of a Tirukural written by a great saintly Tamil poet Tiruvalluvar. பிறப்புக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் சிறப்போவா செய்தொழில் வேற்றுமையால். Tiruvalluvar says that when we all are equal by birth, but we achieve greatness through our actions. That's why I said Atalji is not an individual, but Atalji is a great mission. Atalji is remembered and honored today because of his great actions. As a journalist, as a politician, as a social worker, as a great patriot, as a great administrator, and above all, a Prime Minister who loves this nation and the poor citizens of this country. Sri Atal Bihari Vajpayee always believed in dialogue, inclusive development, and a strong yet humane governance. His all great ideals continue to inspire the nation. Sri Atal Bihari Vajpayee is not just a leader of his time, but a guiding light for generations to come. Sri Atal Bihari Vajpayee always focused on good governance, and that's why we observe his birth anniversary as a good governance day. Whether as a parliamentarian, a poet, or the Prime Minister, he elevated public discourse with a grace and dignity. He proved that politics can be principled and compassionate. His vision of a strong, confident and globally respected India continues to guide our national journey. When I won 12th and 13th Lok Sabha, Atal Bihari Vajpayee was the Prime Minister of this country. Atalji came to my house in 1991 when we organized a conference of Kungu region for the Janata Party in my town Tirupur. Atalji has come to my house. Atalji again came to my house as the Prime Minister for one election campaign of me for the 14th Lok Sabha elections. And my association with him is even stronger and even little earlier. He came in 1973 to Coimbatore. That time I have done the propaganda that Vajpayee is coming to Coimbatore, and that was the first time more than 10,000 people gathered for a Jansang meeting in Coimbatore. At that time I was only 18 or 19-year-old boy. He patted at my back and said, well organized. That is the reason my political philosophy is being retuned by a great personality like Vajpayee. I get so many opportunities to interact with him. Sri Atalji was rightly named by his parents for a simple reason. He always remained Atal and never compromised on his principles. अटल जी का नाम सार्थक था। वे अपने नाम की तरह सदैव अटल रहे और अपने सिद्धांतों से उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। I remember when he was the Prime Minister, the Pakistan, as usual, tried to occupy
some of the portions of Kashmir, and they have occupied some area in the Kargil. But Vajpayee ordered they all enemies should be eliminated from the soil of Bharat. At that time, one call has come from the President of United States of America, Bush requested Vajpayee to stop the war. If you are not stopping the war, then Pakistan may use atomic bomb against you. Very coolly Vajpayee replied him, let him use the atomic bomb. I am not going to stop the war. Till the enemies are vacating the 1 inch of my border, till that time I am not going to stop the war. If they want to use atom bomb, let them use. But I will tell you one thing, Mr. Bush, the very next day, there is no Pakistan on the world map. Sri Atal Bihari Vajpayee was a nation builder. He had initiated many important schemes for India's development. He led the nation on the path of development while ensuring good governance through major initiatives such as the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, the Golden Quadrilateral Project, and several other projects that is the basis for India's development. From 1947 till 1997, 50 years, even our capital like Delhi didn't get a metro, only Vajpayee gives the metro to Delhi, our capital. Sri Atalji's vision of making India a nuclear power led to the success of Operation Shakti in May 1998, when India demonstrated to the world its nuclear prowess and capabilities through the Pokhran tests. भारत को परमाणु शक्ति बनाने की श्री अटल जी की दृष्टि के परिणाम स्वरूप मई 1991 में ऑपरेशन शक्ति की सफलता संभव हुई, जब पोखरण परीक्षणों के माध्यम से भारत ने विश्व के समक्ष अपनी परमाणु क्षमता और सामर्थ्य का प्रदर्शन किया। That there was not no single intelligence agency in the world, whether it is Pakistan's ISI, whether it is America's CIA, or at the time it was the Russia's KGB, no single intelligence agency is able to find out that India is going for an atomic blast at Pokhran. Today, Tamil Nadu is a hub of manufacturers for cars because of Atal Bihari Vajpayee who do a great project like Ennore Port. That is the only reason that car produced in around Chennai is getting exported to many countries in the world. You all know that Dravidian leaders are always opposing Hindi. But once when Vajpayee was speaking in the parliament in Hindi, our late Chief Minister of Tamil Nadu, one of the greatest leader of the Dravidian Party, DMK, Annadurai said, legacy in Tamil Nadu, yes, also the entire country is reminded that leadership rooted in respect, inclusiveness and dialogue leaves a lasting imprint on the nation. Over the last decade, we have achieved so much, and today we are living in Atalji's vision of a strong, confident and globally respected India. That is the greatest achievement on the part of Atal Bihari Vajpayee by Narendra Modi, as the Prime Minister of India today. Sri Atalji was a towering personality who shaped the modern India with integrity, intellect and an unwavering commitment to democratic values. His life always reminds us the leadership is not merely about authority. The leadership is about service, integrity and responsibility to the nation. उनका जीवन हमें स्मरण कराता है कि नेतृत्व केवल अधिकार का विषय नहीं है,
बल्कि सेवा, ईमानदारी और राष्ट्र के प्रति उत्तरदायित्व का प्रतीक है। He will guide us as a mission, and his ideals inspire us to work for a stronger, more united and value-driven India, that is modern Bharat. उनके आदर्श हमें एक अधिक सशक्त, अधिक एकजुट और मूल्यों से प्रेरित भारत के निर्माण हेतु प्रेरित करते रहे। आज के इस बहुत गरिमापूर्ण कार्यक्रम में मध्य प्रदेश की धरती पर पहली बार पधारे, और ये महारानी अहिल्याबाई की धरती है, बाबा महाकाल है, दायित्र हमारे ओंकारेश्वर धाम है। मैं अपनी ओर से मध्य सरकार से और उससे माननीय राष्ट्रपति महामहिम जी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। माननीय महामहिम राज्यपाल श्रीमान मंगू भाई पटेल साहब का आपका भी स्वागत, अभिनंदन। माननीय मंत्री श्रीमान कैलाश जी विजयवर्गीय जी, माननीय मंत्री श्रीमान तुलसीराम सिलावट जी, माननीय सांसद शंकर ललवानी जी, हम सबकी ताई, आदरणीय ताई, आपका अभिनंदन। और महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी, माला दीदी का तो स्नेह और उनका आज का जो चेहरे का आभा मंडल कार्यक्रम के साथ खिलता जा रहा आनंद अलग प्रकार से। आज सम्मानित होने वाले माननीय सुप्रसिद्ध कविवर और पूर्व विधायक माननीय सत्यनारायण सत्तन जी, डॉक्टर सत्यनारायण जेठिया जी, माननीय जगदाले जी, श्री संजय जगदाले जी, माननीय पराग शुक्ला जी, इस अवसर पर आमंत्रित सभी आगंतुक अतिथिगण, भाइयों बहनों, पत्रकार साथियों, सच में राष्ट्रनीति के शिखर पुरुष, राजनीति के अजात शत्रु और विचारों की दृढ़ता और भारतीय लोकतंत्र की मर्यादा के प्रति भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति पे आयोजन, मैं आप सबका प्रणाम करता हूँ, आप सबको बधाई देता हूँ। इतना ये सुंदर आयोजन, हम सबका सौभाग्य। हम में से अधिकांश लोगों ने अटल जी को देखा भी, नई पीढ़ी के लिए जरूर थोड़ा सा गैप हुआ है, लेकिन सच में एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने अपने जीवन के प्रत्येक क्षण में अपनी हर एक जगह, यद्यपि प्रारंभ में अटल जी ने अपनी संघ के प्रचारक के रूप में अपने जीवन की खुद की धारा तय की, और ये संघ का सौभाग्य, हम सबका सौभाग्य, संघ का 100वां शताब्दी वर्ष भी चल रहा है, तो हमारे प्रचारक को याद करके हम गौरवान्वित भी हो रहे हैं, जिसके लिए हमारे अलग एहसास से हम गुजर रहे हैं। और ऐसे भारत माता के चरणों में सत नमन करने वाले, अपने जीवन को होम करने वाले अटल जी, जिनने प्रचारक करके तो जीवन में अपना कदम बढ़ाया, लेकिन पत्रकार बन के भी राष्ट्र धर्म पांच इतने प्रकार से उन्होंने अपने आप को, और लखनऊ से नानाजी देशमुख, ये तीनों ने अपनी जो जिस प्रकार से यात्रा प्रारंभ की, और अटल जी का उसके बाद का क्रम भी हम सब याद रखें कि अटल जी बाद में जनसंघ के जमाने से जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, हर काल हर युग में ऐसा लगता है कि हमारी राजनीतिक यात्रा वाली इस पार्टी में अगर अटल जी का थोड़ा सा स्थान एक तरफ करे तो ऐसा लगता है कि बहुत गैप हो जाएगा, बहुत कमी रह जाएगी। और समान रूप से भारतीय लोकतंत्र के लिए एक ऐसा लोकसभा में बोलने वाला व्यक्तित्व जिसकी दहाड़ से हर प्रधानमंत्री अपने आप में अपने कर्तव्य के प्रति सचेत होता था और मन से तारीफ करता था कि हाँ, हमें गर्व है हमारी इस पार्लियामेंट में अटल बिहारी वाजपेयी के साथ एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसके आधार पर दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र गौरवान्वित होता है। हमें भी आनंद आता है अटल जी का नेता प्रतिपक्ष के रूप में लगभग 50 साल तक अपोजिशन में बोलते रहना, कि आज के युग में भी कई लोगों को परामर्श होगा, और खास करके बड़ा अटपटा लगेगा अटल जी को याद करते हैं, लेकिन क्या करें, नेता प्रतिपक्ष की भूमिका का कितना पवित्र पद उन्होंने धारण किया था कि जब जब आवश्यकता पड़ी इस देश को, चाहे बांग्लादेश का युद्ध हो या बाद के किसी और कालक्रम की बात हो,
जब भी वो विदेश में गए भारत माता को सदैव गौरवान्वित किया, लोकतंत्र को सदैव उन्होंने आनंद के साथ पूरे देश को आनंद के हिलोरों में डुबाने का काम किया। और ये बाकी के लिए भी सीख कि जैसे अटल जी के लिए अभी वो पुरानी बात छोड़ दे, लेकिन छोड़े कैसे? पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी का गुलदस्ता, हिंदी को गौरवान्वित करने का मौका अगर किसी ने दिया तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया। अटल जी के जीवन का कितना अलग अलग प्रकार का कोई सोच नहीं सकता कि संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में कोई बोलेगा, लेकिन अटल जी ने न केवल हिंदी में बोले बल्कि बांग्लादेश के युद्ध में देश की सीमाओं पर लड़ने वाली सेनाओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए और देश की प्रधानमंत्री को गौरवान्वित करते हुए साक्षात मां दुर्गा जगदम्बा के समान शक्ति की आराधना करने वाले उस भाव को जगाते हुए हमारी सेना और पूरे देश का मनोबल बढ़ाया। अब जब उनकी बात करते हैं तो आपातकाल के अंदर ऐसे पवित्र आत्मा और ऐसे लोकतंत्र गला घोटने वाली घटना में बगैर संकोच आडवाणी जी के साथ अपनी जो कविताओं के माध्यम से, जिसके बारे में माननीय जेटली जी ने कही दिया, मैं दोहराऊंगा तो नहीं, लेकिन आज अपन उसको केवल याद करें थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए कि 2 सांसदों तब भी अपने दल के अंदर, तब भी अपने दल की विचारधारा के प्रश्न खड़ा हो जाए तो वापस समान रूप से इतनी बड़ी पार्टी को खड़ा कर देना, यह हर एक किसकी बस की बात नहीं है। लेकिन अटल जी और उनके साथ सारे उनके प्रचारकों के साथ जनता पार्टी से भारतीय जनता पार्टी की यात्रा कष्टकारी हुई, और उस कष्ट के बाद जब राजीव गांधी जी की हत्या हो जाती तब तो और चुनौती होती है। केवल 2 सांसद हमारे बचते हैं, लेकिन चाहे 2 सांसद हो चाहे 100 सांसद हो, अटल जी रहे, हमें इस बात का आनंद है। अटल जी का युग और बदलते दौर में इतने दलों के साथ 24 दलों के साथ सरकार बना ले और सरकार चलाए, और सरकार चलाने में भी क्या पवित्रता है। एक वोट से भी अगर सरकार के बहुमत के मसले में फैसला हो जाए तो ऐसा लगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मुझे मालूम है कई सारे विरोध के पक्ष के नेताओं ने भी कहा, जिसमें चंद्रशेखर भी एक थे, कि कहीं ये एहसास तो करा देते कि ये ऐसा हो रहा तो हम मदद कर देते। लेकिन अटल जी के शब्दों में एहसास होगा कि अगर इस पाप के तरीके से बनाई गई सरकार को तो टीपीएस से भी पकड़ना पसंद नहीं करेंगे। इतना पवित्रता का मन का भाव कि सरकार जाए तो चली जाए। सरकार के मामले में जो अपना उनका तरीका है, वो 24 दलों के कभी कल्पना करते कि ममता जी को तो आज भी कंट्रोल करना मुश्किल है, अटल जी ने सरकार कैसे चले तो आज तो बंगाल का जो धमाल चलता रहता ममता का, वाकई कमाल है। क्या ममता, क्या जयललिता, रानी अटल जी कैसे इनको पूरा पाड़ते होंगे, कमाल करते कैसे काम करता होंगे। और मायावती, हाँ, एक से बढ़ के एक, क्या मायावती, क्या जयललिता, क्या ममता, तब जगदम्बा आनंदी कैसे काम चलता होगा। लेकिन अटल जी आनंद के साथ आराम से धीरे धीरे, और उनकी दुनिया भी कैसी थी, सरकार चले तो कैसी चले। हम तो सब आनंद के साथ इतने दलों की सरकार चलाए तो कलेजा चाहिए। और सरकार चलाने में भी जिस प्रकार से उन्होंने परमाणु बम के मसले पर निर्णय करा और किया कि हाँ, भारत को शक्ति संपन्न होना चाहिए, भारत को स्वाभिमान के साथ जीने का अधिकार है, तो आनंद आता था। एक साथ नहीं फोड़े, रोज एक बम, आज एक बम फोड़ा, पूरा देश उछल गया, दूसरे दिन फिर दूसरा फोड़ दिया। लोगों ने कहा प्रतिबंध लगा देंगे, तो तीसरे दिन फिर फोड़ दिया। उन्होंने कहा अब तो बिल्कुल बात नहीं करेंगे, चौथे दिन फिर फोड़ दिया। ये अटल जी कर सकते थे। जितने चिड़ा के मैं मानवीय भाषा में अगर बोलूं तो आदमी को थोड़ा हजवाने के काम की दृष्टि से देश के स्वाभिमान के लिए वो आनंद के साथ अपने लिए देश वो हमको उस परमाणु बम की ताकत के साथ भारत को शक्ति संपन्न बनाने में जो योगदान उन्होंने दिया, और जो उनका वाक्य है कि सब बदल सकते, पड़ोसी नहीं बदल सकते, इतने प्रकार से प्रयास किए, ये अटल जी ही कर सकते थे। पाकिस्तान से भी कोई परेशानी नहीं। लेकिन अगर पाकिस्तान ने गड़बड़ी की है तो टाइगर हिल की लड़ाई को एक एक दिन को याद करो। हमने न केवल टाइगर हिल में स्वाभिमान को बचाया, अपने देश की सीमाओं की रक्षा करके भी दुनिया में संदेश दिया। ये अटल जी ही कर सकते थे। हम सबका सौभाग्य
जिस प्रकार से पाकिस्तान ने हमारी सीमाओं के अंदर आकर के, लेकिन एक नहीं बहुत सारी बात बोल सकते हैं। आज बोलने का नहीं है समय, केवल सुनने का है। और आज अटल जी का जब जन्म शताब्दी वर्ष मना रहे हैं तो उस आनंद में भी हम लोग हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता, माननीय महामहिम, हमारे यहाँ 25 तारीख को जब जन्म शताब्दी वर्ष का समापन होगा, हमारी सरकार के गठन के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद के साथ हमने हमारे हर वर्ग के कल्याण के लिए जो अटल जी का सपना था, इसलिए उनकी कविताओं के भाव में ध्यान में आ जाता है। कितने प्रकार से बोलते हैं, ऊंचे पहाड़ पर पेड़ नहीं लगते, पौधे नहीं उगते, ना घास जमती है सिर्फ बर्फ जो कफन की तरह सफेद और मौत की तरह ठंडी होती है। खेलती उससे बर्फ से क्या होता है, ये अटल जी बताते हैं। खेलती है खिलखिलाती नदी जिसका रूप धारण कर अपने भाग्य पर बर्फ बूंद बूंद रोती है। ये जो उनका भाव है कि हमारे ऊंचाई देने के मामले में भी हमारे जीवन में जब तक सब समाज को लिए साथ है, आगे है बढ़ते जाना, जब तक ये भाव नहीं आएगा, ना ऊंचे ही थे ना नीचे ही थे, समभाव से लोकतंत्र की सभा को बढ़ाने के लिए एक ऐसा व्यक्तित्व हमारे बीच से, खासकर हमको तो और हमारा आनंद डबल हो जाता है जब अटल जी के बारे में कहा जाता है। तो अटल जी हमारे प्रदेश के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, ग्वालियर से निकल करके दुनिया के अंदर में लोकतंत्र को गौरवान्वित किया। आज उनकी जन्म शताब्दी वर्ष मना रहे हैं तो उस आनंद में हम सराबोर हैं। और अटल जी की जन्म शताब्दी को हम इसीलिए उद्योग रोजगार वर्ष के समापन के अवसर पर एक ही दिन में माननीय गृह मंत्री जी के माध्यम से 25 तारीख को ग्वालियर से 2 लाख करोड़ से ज्यादा के उद्योगों के भूमि पूजन लोकार्पण अटल जी को समर्पित करने वाले हैं। हमने इस कार्यक्रम की रचना बनाई है, इसलिए सच्ची श्रद्धांजलि अटल जी की जो होगी आज के इस अवसर पर पुनः मैं सभी महामहिम सहित सभी सम्मानित अतिथियों का अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। महानुभाव, भाइयों और बहनों, प्यारे बच्चों, मीडिया के मित्रों, अटल फाउंडेशन द्वारा आयोजित भारत रत्न स्वर्गस्थ अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी समारोह में देश के उपराष्ट्रपति महोदय के समक्ष विचार अभिव्यक्ति का अवसर मेरे लिए गर्व और हर्ष का विषय है। अटल जी की जन्म शताब्दी समारोह केवल उनके पुण्य स्मरण का प्रसंग नहीं, बल्कि उनके विराट व्यक्तित्व और नेतृत्व से प्रेरणा प्राप्त करने वाला पावन क्षण है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि जिन्हें प्रखर राष्ट्र नायक और जन जन के प्रेरणा स्रोत श्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सानिध्य में काम करने का अवसर मिला। मेरे अंतर मन में उनकी स्मृतियाँ आज भी जीवंत है। उनके महान आभा मंडल में रहकर करीब से देखने का, समझने का, प्रेरित होने का विशेष लाभ मेरे को हुआ है। उन्हें कुछ शब्दों में समेटना संभव नहीं है कि वे एक विराट व्यक्तित्व, एक महाकाव्य थे। उनकी वाणी में ओज था जो जन समूह के ऊर्जा और राष्ट्र भाव जगाती थी। वे असंख्य कार्यकर्ताओं के लिए प्रकाश पुंज थे। उनके जीवन मूल्य ऐसे ग्रंथ की भांति जिसका प्रत्येक पुष्ट नैतिकता, उत्कृष्टता और राष्ट्र धर्म की राह दिखाता है। अटल जी केवल राजनेता नहीं थे, बल्कि वे कवि, चिंतक, अद्भुत नेतृत्व गुणों से संपन्न, विनम्र, संवेदनशील, स्वाभिमानी राष्ट्रभक्त थे। प्रधानमंत्री जी के रूप में उन्होंने भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास में गठबंधन राजनीति में समानता, संवाद और समय के अनेक आदर्श प्रस्तुत किए हैं। अपने को उपराष्ट्रपति को भी यहाँ सीखना है। मैं ज्यादा बोलने के नहीं सोचता, मगर 2 प्रश्न मैंने एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में 1975 25 जून को जब इमरजेंसी उसी दिन रात को जब हुई थी, तभी मैं सामान्य कार्यकर्ता के रूप में अहमदाबाद में जयप्रकाश चौक के वहां जनसभा थी। उसमें जयप्रकाश जी, अटल जी, बलराज मधोक जी, भाई महावीर जी उपस्थित थे। वाजपेयी जी को आने में देरी थी, मगर जब भी आए तभी एकदम पब्लिक उठे, भागो हो गया। जयप्रकाश जी का भाषण चल रहा था, तो क्या है भैया, तो बोले कि वाजपेयी जी आ रहे हैं।
हाँ हाँ, वाजपेयी जी आ रहे हैं, जिसके मुंह में जयप्रकाश जी बोल रहे थे, जिसके मुंह में सरस्वती देवी बसी हुई है, वो वाजपेयी जी आ रहे हैं। ऐसे करके जयप्रकाश जी का संबोधन था। वास्तव में वाजपेयी जी के मुंह में सरस्वती देवी बसती हुई थी। हमने ये सभी ने देखा भी है और सुना भी है और कई ने अनुभव भी किया। दूसरी बात, एक देश के प्राइम मिनिस्टर का डेथ होता है, तभी एक प्राइम मिनिस्टर उनके स्मशान यात्रा में 5 किलोमीटर पैदल चलते जाना, मैं समझता हूँ इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ है अभी तक। आगे क्या हुआ भगवान जाने, मगर एक प्राइम मिनिस्टर के मन में अपने नेता के लिए क्या वहां सद्भाव था कि उसकी स्मशान यात्रा में 5 किलोमीटर चले। मैं समझता हूँ ऐसे महापुरुष हमारे जीवन में कई, उनके प्रेरणा देने का बहुत दृष्टांत है। हमें उनमें से प्रेरणा लेकर स्वर्गस्थ अटल जी के जीवन में हम भी कुछ ऐसा 1% कुछ काम करें देश के लिए, समाज के लिए, तो मैं समझता हूँ कि उन्हीं प्रेरणा से हम बने हैं। मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। उपराष्ट्रपति के सानिध्य में जो हमारे वहाँ कार्यक्रम में पधारे, उसका मैं स्वागत करते हुए अटल फाउंडेशन का बहुत बहुत आभार मानते हुए मैं मेरी बात पूरी करता हूँ। आभार। भारत माता की जय।